Hello students, today we will discuss on the topic de Broglie wave. Actually de Broglie wave is associated with the matter wave. We can say the material waves are the de Broglie waves. According to de Broglie, a moving material particle can be associated with the wave. For example, a wave can guide the motion of a particle. As we can see in this section, the point is showing the particle and the vibration of particle is this, and this is a single wave where lambda is the wavelength. The waves associated with moving material particles are known as de Broglie waves. Here, otherwise we can say also matter waves. For the expression of de Broglie, according to the quantum theory, the energy of the photon is E equal to h nu is equal to sc upon lambda. And according to Einstein's theory, this energy of the photon is equal to mc square also. Now we can consider lambda is equal to h upon mc and lambda is equal to h upon p, where the wavelength of wave is h upon p. This is the de Broglie wavelength, where p is the momentum of the photon. If instead of the photon we have the material particle of the mass m moving with the velocity v, the equation becomes lambda is equal to h upon mv, which is the expression of the de Broglie wavelength again. The conclusion, you can write also here lambda is equal to h upon mv. de Broglie wavelength is the inversely proportional to the velocity. जो de Broglie wavelength होगी वो velocity के यहाँ पर देख रहे हैं inverse proportional of the particle. If the particle moves faster, अगर particle क्या है move faster, then wavelength will be smaller vice versa. wavelength उतनी ही छोटी होगी जितना particle की velocity यहाँ ज़्यादा होगी. If the particle is rest, the de Broglie wavelength is infinite. अगर particle rest पे है तो de Broglie wavelength infinite होने का reason यह है क्योंकि rest में जो आपका photon particle है उसका mass 0 हो जाता है. Such we cannot be visualize. इसको हम visualize भी नहीं कर सकते हैं. Next, de Broglie wavelength is inversely proportional to the mass of the particle. The wavelength associated with the heavier particle is smaller than that with the lighter particle. de Broglie wavelength is the independent of the charge. de Broglie wavelength चार्ज से इंडिपेंडेंट है. ये चार्ज से अफेक्टेड नहीं होती हैं या फील्ड से किसी अफेक्टेड नहीं होती हैं. मैटर वेव्स लाइक द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रेवल इन द वैक्यूम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं. हैंस दे आर नॉट अ मैकेनिकल वेव्स. यानी कि de Broglie वेवलेंथ्स में जो वेव आएंगी वो मैकेनिकल वेव्स जो है नहीं होंगी. मैटर वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बिकॉज दे आर नॉट प्रोड्यूस द एसोसिएटेड चार्जेस. ना ही वो चार्जेस से क्या है एक्सेलरेटेड चार्जेस से नहीं बन रही है, इसलिए वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस नहीं करती हैं. मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट होती हैं केवल. मैटर वेव्स आर प्रोबेबिलिटी वेव्स एम्पलीट्यूड ऑफ विच गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट. ये वेव्स ऐसी वेव्स हैं जो किसी मैटर की पार्टिकल की एग्जिस्टेंसी को भी एक्सप्लेन करती हैं. अब जैसे कल लास्ट हमने चैप्टर पढ़ा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हमारा जो एप्लीकेशंस है जहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहले आता है हमारा ऑटोमेटिक फायर अलार्म. आप फ़ोटो जो सेल है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो बने हुए फोटो वोल्टेक सेल है, हमारा फोटो सेल है, सोलर सेल है, इनमें से ही एक सेल होता है जो कि किसी अलार्म के लिए यूज़ किया जाता है. ऑटोमेटिक बर्गलर अलार्म के लिए भी यूज़ किया जाता है. स्कैनर इन द टेलीविज़न ट्रांसमिशन. फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही पार्टिकल स्कैनिंग, जो हमारी टीवी CRT टीवी हुआ करते थे, अभी तो नहीं है, पहले जो बड़े CRT टीवी हुआ करते थे उनके अंदर जो स्कैनिंग होती थी वो भी फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही कंसीडर होती थी. रिप्रोडक्शन ऑफ द साउंड इन द सिनेमा. जो फ़ोटो हमारे हैं, जो किसी फ़ोटोन, जो लाइट फ़ोटोन जो कभी किसी स्क्रीन पे पड़ते हैं, पहले स्क्रीन से ही साउंड को प्रोड्यूस करते थे, उसको भी हम कहते थे स्क्रीन सिनेमा साउंड. इन द पेपर इंडस्ट्रीज मेजर द थिकनेस ऑफ द पेपर. पेपर इंडस्ट्रीज़ के अंदर यही फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना यूज़ करके पेपर के थिकनेस को हम
फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट आता है टू लोकेट फ्लॉज और होल्स इन द फिनिश्ड गुड्स। अगर किसी बड़े से ब्लॉक में कोई बाल या कोई क्रैक अगर हमें फाइंड आउट करनी, तो भी इसी फिनोमेना से हम यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। इन द एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, क्योंकि वहाँ पर सोलर सिस्टम और बाकी जो हमारे सोलर प्रोब्स वगैरह जो होते हैं, जो सेटेलाइट्स होती हैं, उनमें काफ़ी हद तक यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज़ किया जाता है। टू डिटरमाइन द ओपेसिटी ऑफ द सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड की ओपेसिटी के लिए यूज़ करते हैं। ऑटोमेटिक स्विचिंग स्ट्रीट लाइट, जो हमारे स्ट्रीट लाइट फोटो इलेक्ट्रिक सेल होती हैं, लगी हुई पैनल होती हैं, वो ऑटोमेटिक देखते हैं आप शाम के टाइम जल जाती हैं, वो ऑटोमेटिक स्विचेस का काम भी इसके थ्रू किया जाता है। टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस, किसी फर्नेस के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। फोटोमेट्री, जो फोटोमेट्री थेरेपी होती है, उसके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। ब्यूटी मीटर्स टू मेजर द फेयर कॉम्प्लेक्शन ऑफ द स्किन, फेयर कॉम्प्लेक्शन ऑफ द स्किन को उभारने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। लाइट मीटर्स यूज इन द सिनेमा इंडस्ट्रीज टू चेक द लाइट्स, तो लाइट सिनेमा को जो सिनेमा घर होते हैं, जो लाइट मीटर्स होते हैं उसके अंदर, उनको भी ये क्या करती है, चेकिंग आउट करने का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स स्टोरिंग, फोटो कंटेनिंग और मेट्रोलॉजी, इसमें भी आपका ये वर्क करता है, मेट्रोलॉजी इनकी स्टडी में। ठीक है स्टूडेंट, अगर कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, तो आप मुझसे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, पर्सनली बात कर सकते हैं, और अपनी अटेंडेंस ज़रूर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।